the weakening of uh, the right to housing, which has formally not been recognized. It has been recognized and at various occasions by various high courts and several times by Supreme Court. But since there is no law to protect right to housing, and in the paucity of such a legislation, the authorities get chance to evict the poorest of the poor, who they are meager, who will and the present scheme, I think all the schemes, policies are mere soaps. They are eyewash. For example, the present housing for all scheme, if you look at the urban component of it, I think except for the poorest of the poor, I think everyone will be able to take housing from that scheme, but not who are the most needy. An analysis has been done several times by several experts of this well-proved the statement. And but as we demand for right to housing law, I think we also need to also at the same time address the confusion about whether a housing right will mean into a property and another property right. That concern needs to be also at the same time addressed. And uh, and I think in this meeting it will be good if we also factor the current housing crisis, the current threat the large number of people in Mumbai and other parts of Maharashtra are facing in terms of their housing, the threat of eviction, the threat of eviction due to dispute over ownership of land. For example, the large number of people living on land of railways and forests, they face perpetual threat of eviction because the dwellers living on these land won't get rehabilitation rights. Slowly it is happening. I think recently the Maharashtra government has recognized their right to rehabilitation and has offered their rehabilitation into SRA building. But how it will be done, the house has not been given, the detail has not been shared yet. So that needs to be discussed. And also how they are living a pathetic like in the absence of all the amenities because of the same issue, because their land ownership has not been because of dispute created due to the ownership of the land. So I think we should also take the day-to-day crisis struggle of the people living in informal settlement in this deliberation in this meeting today. So moving on, I would like to start with introducing our main panel. Today we have Amita Bhide, who is the Dean of Habitat Studies, Tata Institute of Social Sciences. She is an academic party uh, excellence. Some of her work is around the issues of governance, housing, and land rights. She has a live contact with ground and has been part of various people's campaign. Then we have Neera Adarkar. Neera Adarkar is a feminist architect and urban planner and has worked very closely associated with mill workers' struggle and has been instrumental in the mill workers' housing. She, along with Meena Menon, I'm sorry, yeah, sorry. She, along with Meena Menon, has co-edited the 100 Years, 100 Voices. Currently, she is a founder faculty of School of Environment and Architecture. Then we have Sharad Mahajan, who is an architect, planner, and founder member of Mashal NGO. He has worked extensively in rehabilitation projects in disaster hit areas in Gujarat and Maharashtra. He works closely with many urban local bodies and has been working with para-statal agencies like Mahada SRA. He is also a faculty at Yashda and associated with in HAF, National Network of Organization for Human Settlement. We have Hussain Indorwala, who is an associate professor and faculty in KRVI College of Architecture. He has been extensively working on the issues of spatial justice for the dwellers in the city. He has worked extensively to make the development plan of Mumbai participatory. He is also been one of the prominent voices opposing the coastal road. Then we have Raju Bhise, who was the
who Raju Bise is with the organization Yuva for many years. He is now associated with Ekta Kamgar Manch and also an active member of Swaraj Abhiyan and on the active faces of Abhiyan in Maharashtra. His wisdom and ability to find intersectionalities is extraordinary. Uh, I would like to also introduce our chair. Let me just in this. बिलाल, हेलो। Yes. Ji, अरे Raju. मैं स्वराज अभियान के साथ नहीं हूँ अभी जुड़ा हुआ। No, I did not mention, I think, about the Swaraj Metal, did I? ठीक। Okay. You Sorry. mentioned it's okay. It's a development which we did not know. So Okay. sorry, apologies for that. Yeah. So for Advocate Gayatri Singh will be chairing this session. Advocate Gayatri is a designated senior counsel of Bombay High Court and a prominent lawyer on labor rights, housing rights, and civil liberties issues and democratic rights across the spectrum for several decades. So I would like to invite Advocate Gayatri Singh to chair the session. Advocate Gayatri. You are on mute. Gayatri, you are on mute. Sorry. I unmuted myself. Yeah, shall we start? Yes, we can, I think. Amita, you start? Yeah, sure. I already introduced, so you can just start. Okay. So Gayatri, how much time do I have? 10 minutes. 10. Yeah, 10 minutes, right? Okay. Thanks Bilal, Shweta, and all colleagues for. Can I make a small intervention and since I mentioned that we have a mix of हाँ, मैं हिंदी में बात करूँगी. okay. Because I also wanted to also Yeah. set a brief context in Hindi. हाँ. So can we do it? I'm sorry for do it in the middle. Shweta, will you be able to give a 1 minute summary of your context? Bilal, it's very difficult to say things in 1 minute. लेकिन बाद में जब बातें होती रहेंगी तो समझ में आ जाएगा. कंटेक्स्ट यही है कि हम बहुत सारे वेबिनार करने वाले हैं. पहला ये वेबिनार का सीरीज है और कोविड ने अभी की परिस्थिति में जो हाउसिंग के क्राइसिस है उसको पूरी तरह से एक्सपोज करके रखा हुआ है और इसीलिए जो मेहनतकश लोग हैं शहरों में उनको वापस अपने घरों तक जाना पड़ा और बहुत सारी बस्तियों की डेंसिटी उनमें मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण बहुत सारे लोगों की आजीविका आज भी उनको वापस नहीं मिली है और इस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि सरकार ने एक नई हाउसिंग की नीति लाई है जहां इतने समय तक हम हाउसिंग को ओनरशिप के तौर पे देख रहे थे वहां सरकार ने भी अपना एक नजरिया बदला है और उसको रेंट की तरफ ले जा रहे हैं और इसको हमको किस तरह से समझना चाहिए लोगों को इसका कैसा फायदा होना चाहिए उसके बारे में बात करने की जरूरत है और शहरों का विकास कैसे होना चाहिए उसमें शहर के लोगों का क्या किस तरह से समावेश किया जा सके इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा करने की जरूरत है. क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी ओनरशिप और रेंटल और होमलेस और इन सब डिस्कोर्सेस को फिर से देखने की जरूरत है और साथ ही साथ जो अभी की परिस्थिति में जो एक तरह से होमलेस लोगों की संख्या बढ़ी है उनको भी फिर से देखने की जरूरत है. तो ठीक है. मैंने बस इतना बोला कि हमें एक कानून की भी जरूरत है जो आज कमजोर हो रहे हैं हाउसिंग के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में और उसको लेकर हाउसिंग के कानून को लेकर जो हमारे कंसर्न है जो हमारे फिक्र हैं उसको लेकर भी उनको लेकर भी बातें होना चाहिए और इसलिए और हमें एक घर के अधिकार को सुरक्षा देने वाला कानून की हमें जरूरत है. साथ साथ मैंने कहा कि
जो हाँ, बॉम्बे में बहुत सारे इश्यूज हैं, डिमोलिशन के लोग फेस कर रहे हैं, उनके पास बेसिक अमेनिटीज नहीं है, उस परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, और जो ओनरशिप के इश्यूज हैं, फॉरेस्ट की लैंड पर रहने वाले लोगों को या रेलवे की लैंड पर रहने वाले लोगों को घर का रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास का अधिकार नहीं मिलता है, बेसिक अमेनिटीज नहीं मिलती हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए, वो भी हमें चर्चा करने की जरूरत है इस घर के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में। तो ओवर टू गायत्री जी एंड अमिता जी। या अमिता, हाँ जी, आप शुरू कीजिए। ओके। धन्यवाद गायत्री, धन्यवाद श्वेता, बिलाल और सारे साथी। जिंदाबाद। अ, मैं एक 2-3 विचार सिर्फ, पूरा का पूरा हिंदी बात करेंगे तो भी चलेगा बिलाल? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो कुछ बम्बैया हिंदी है मेरा वही जी, है। जी। ठीक। अ, तो 2-3 विचार कि हम जब घर के अधिकार की बात करते हैं तो सबसे अहम मुद्दा जो आता है कि जिसका जिक्र अभी श्वेता ने किया कि हाउसिंग की समझ जो है खास करके सरकारों के बीच में वो बिल्कुल बदल गई है, और उसका पूरा का पूरा रूपांतर आज जो है वो घर दे रही है सरकारें। तो आज मुझे लगता है गए 20 सालों में हमने हाउसिंग के क्षेत्र में जितना एक्टिविटी देखा है, जितना पॉलिसी मेकिंग देखा है, वैसा कोई भी क्षेत्र में और भारत के इतिहास में उतना पॉलिसी मेकिंग कभी भी नहीं देखा है। कोई भी क्षेत्र ने इतना पॉलिसी मेकिंग नहीं देखा है। स्कीम के ऊपर स्कीम्स आ रही है, और मुंबई जैसी सरकार जहाँ पे ऑफर कर रही है कि एक तरफ से फ्री हाउस देंगे, दूसरी तरफ उड़ीसा ने सारे जो बस्तीवासी है उनको वैयक्तिक जमीन के अधिकार देने की बात की है, और वही जो लेसन है वो पंजाब की गवर्नमेंट और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट भी दोहरा रही है। तो सवाल ये आता है और सवाल ये उठता है कि आज फिर हमारा झगड़ा है या नहीं है, और किस बात के साथ झगड़ा है। तो मुझे लगता है कि घर के अधिकार का जो पूरा संकल्पना है वो 2-3 चीजें साथ में लेके आता है, और उसको हम किस तरह से असर्ट कर सकते हैं अपनी आगे की लड़ाई में, मुझे लगता है कि ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। एक है कि घर का मुद्दा ये कभी भी एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं हो सकता। वो घर का मुद्दा जो है वो 3 अन्य चीजों के साथ बहुत अभिन्नता से जुड़ा हुआ है। एक है कि जो सारे इवन कॉन्सेप्ट जैसे देखेंगे तो लाइवलीहुड, उदर निर्वाह के जो सवाल है उनके साथ जुड़ा है, और वो आर्थिकता अगर निकाली जाए हाउसिंग के मुद्दों से, तो फिर हाउसिंग के मुद्दों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। दूसरी बात जो है और दूसरा संबंध जो है जो हाउसिंग के अधिकारों का है वो प्रक्रिया के साथ। और मैं प्रक्रिया की बात इसलिए कर रही हूँ कि मुंबई में आज जब हाउस दिया जा रहा है, उसी तरह से लोगों का जो अपनी सेटलमेंट बनाने का, उसको संवारने का हक जो है, और किस तरह का नया घर बनना चाहिए उसके ऊपर का हक जो है, उसके ऊपर के उनके विचार जो है, उससे उनको विलग किया जा रहा है। और लोगों का सहभागी होने का अधिकार, अपने मत प्रदर्शित करने का अधिकार, और वो मत जो है वो विचार में लेके उसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार जो है, मुझे लगता है ये फिर से दोहराने की जरूरत है, क्योंकि दैट इज अगेन बीइंग डिप्राइव्ड टुडे। सेकंड, द थर्ड पार्ट जो मुझे बहुत अहम लगता है कि ये प्रॉपर्टी को हमेशा जो फिनांस के साथ जो जोड़ा जा रहा है, और फॉर्मल मार्केट्स पे जहाँ जहाँ जोड़ा जा रहा है, और वो प्रयास आज सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगी पूना में हो रहे हैं, थाना में हो रहे हैं, नागपुर में हो रहे हैं, महाराष्ट्र का ही अगर संदर्भ दिया जाए, दिल्ली में, बंगलोर में, ये सारे जगह पे
हैदराबाद में भी मैंने देखा है कि ये प्रयास हो रहे हैं, काफी तरह से यशस्वी नहीं हुए हैं लेकिन ये प्रयास हो रहे हैं। तो ये जो भाग है कि कोई भी बस्ती को उस फॉर्मल प्रॉपर्टी मार्केट से लेके सिर्फ बिल्डर्स के द्वारा उसका पूरा कंस्ट्रक्शन करना, उसको वो प्रॉफिट के साथ जोड़ना, ये इसका भारी पैमाने पे विरोध करने के लिए हमारे हाथ में शस्त्र क्या हो सकता है, तो वो हाउसिंग राइट के आर्टिकुलेशन में आना चाहिए कि you cannot sell slums to developers and call it development, okay? Or it is a sale, no, at a much higher price, at a much higher project. और इससे जो बनता है, तो आज हम मुंबई में देखते हैं कि जहाँ कोलीवाड़े जो है वो बेचे जा रहे हैं, और कोविड के संदर्भ में ये इतने भारी पैमाने पे आगे आया है कि 2-3 चीजें उभर के आई कि एक तो राज्य अपने महाराष्ट्र राज्य के लेवल पे, और दूसरा कि पूरा भारत के लेवल पे भी जो डिपेंडेंस है ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और इसलिए उसको कैसे भी करके इंसेंटिव्स देना है, उसको जिंदा रखना है, वो प्रोग्राम्स को। तो अगर मुंबई के स्तर पे हम जितेंद्र आवाड़ जी का रोज हर हफ्ते में हम एक नया इंसेंटिव देख रहे हैं, और वो एक नया स्ट्रेच दे रहे हैं, कहीं बीडीडी चाल हुआ, फिर दूसरे हफ्ते में कोलीवाड़ी हो गए, तीसरे हफ्ते में ठाणे में क्लस्टर डेवलपमेंट, और कहीं क्लस्टर डेवलपमेंट, ये सब अनाउंसमेंट हर हफ्ते हो रहे हैं। वही हम राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं कि आज माइग्रेंट्स के हाउसिंग के नाम पे जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, और उसी का एक कंपोनेंट जो है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जो एकदम भारी टिका है सरकार के खुद के अपने कार्यक्रम की, कि वो एक कंपोनेंट है कि जो मकान अभी तक शासन ने बनवाए हैं, अलग अलग राज्यों ने बनवाए हैं, और जो खाली पड़े हैं उनको कन्वर्ट करना रेंटल हाउसिंग। अभी बात क्या है कि इसमें बाकी कोई भी एनालिसिस नहीं है, एनालिसिस सिर्फ ये है कि हमने ये मकान बांधे थे, और अभी कैसे भी करके ये जो मकान है, ये जो एसेट्स है, उनका उपयोग करना है, और वो भी किसके लिए, कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे वल्नरेबल है, उसके ऊपर थोपने के लिए। okay? तो फिर से आई थिंक देयर आर 2 थिंग्स कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस तरह के मकान बनवाए हैं, जिस तरह से जगह का चुनाव हुआ है, क्यों ये पेरिफेरी पे बांधे गए हैं, क्यों उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, कि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे पानी का सप्लाई, बाकी रस्तों का सुविधा, या इवन इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रीट लाइट्स का सुविधा अभी तक नहीं किया गया है। तो ये सवाल बिल्कुल अनदेखा करके हम लोग इनको डिप्लॉय कैसे किया जाए, उसका फिर से एसेट वैल्यू, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई सवाल नहीं पूछेगा, और ना ही वो राज्य सरकारों को कि जिन्होंने ये इस तरह के, या स्थानिक सरकारों को जिन्होंने ये निर्णय लिए होंगे, उनको जवाबदेही मानेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जब घर के राइट की बात करते हैं, तो ये 3 चीजें जो है, एक प्रक्रिया, दूसरा लाइवलीहुड का संबंध, और तीसरा अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड बिल्डिंग इन टूल्स, कि जिससे हमको ये नो डिसीजन विदाउट अस, ये जो बात है, तो हम ये किस तरह से दोहरा सकते हैं, इसकी बात जरूर 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 होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि आज के माहौल में ये डिसीजंस लेना एकदम आसान नहीं है, क्योंकि आज घर का मसला जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एक तरफ से टेनेंट्स का भी मसला है, दूसरे तरफ फिर जो होमलेस है उनका भी मसला है, फिर माइग्रेंट हाउसिंग का है, और चौथी तरफ जो ऐसे इनफॉर्मल सेटलर्स है कि जो काफी सेटल भी हो चुके हैं और उनके अलग एस्पिरेशंस है। लेकिन एक समान धागा अगर हम इसमें सबसे पकड़ सकते हैं, तो वी शुड ट्राई टू मूव फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम। और मुझे लगता है ये अगर 3-4 प्रिंसिपल्स के अराउंड हम हाउसिंग का डेफिनेशन कर सके, और उस तरह से भाषा कर सके कोई भी असर्शंस की, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। वी शुड नॉट गो
for a national level legislation. We know that it will not work and it is wrong. It will produce disastrous results. But we need principles at the national level, or we need much more action at a decentralized local government level. तो वो प्रेस करने के लिए एक enabling framework जो है वो हमको राष्ट्रीय स्तर पे जरूरी है. बस यही. Gayatri, I'm done. Thank you. Sorry, I got muted. Thanks a lot. That was very in a very short and brief presentation. You made very important suggestions, which we'll go through when we conclude the session. Then I'll just summarize everything. But next, I think, is Neera. Neera, are you there? Neera. Neera was there. What happened? I'm there. Okay. Only, but I was told I was third, so let me just put my. Neera, can we have Mahajan sir first? Sharad. Yeah. Oh, sorry, Neera. No, it's okay. So sorry. Whatever. So Sharad is there? Sharad. Unmute yourself, sir, please. हिंदी में शरद है. He's there. Unmute नहीं किया है. Sir, unmute करा स्वताला. वीडियो भी ऑन नहीं है. वीडियो ऑन है, आवाज नहीं आ रहा है. हाँ, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया, उनको नहीं आ रहा है अनम्यूट करने शायद. मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उनको. हाँ करो. हाँ नहीं. आई थिंक बिलाल आप म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट नहीं कर सकते हो. हाँ, नहीं तो सर्वेलेंस हो जाएगा. अनम्यूट करेक्ट. शरद जी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं शायद यहाँ से रिजॉल्व कर सकूं. बिलाल जी, अगर नहीं हो रहा है तो तब तक नीरा को बोल. हाँ, एक्चुअली उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई इशू है. उन्होंने कहा है वो लॉग आउट करते हैं और फिर लॉग इन करते हैं, और तब तक हम नीरा का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं. Okay, Neera, sorry. Okay, not at You're all. back Not at again. all. Okay, can I show a photograph? Just to, I don't know. Oh, Shweta. Bilal, I have shared the presentation. Can you Just bring first it on the first photo of this housing which is ready. screen? Yeah, I'm getting Bilal to do it. Okay, मैं चालू तो करती हूँ. हाँ, ठीक है. हाँ, हाँ, आप बोलना शुरू करें. We'll bring that on. ओके, ये मुझे मिल मजदूरों के हाउसिंग के बारे में बोलना है. मैं एक ओवरव्यू लूंगी क्योंकि डिटेल में तो सब बताना मुश्किल है, लेकिन जो हम हाउसिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो वो हाउसिंग राइट्स मिल मजदूरों ने कैसे एग्जीक्यूट किया ये हाउसिंग मिलने के लिए, उसकी एक थोड़ी सी जानकारी मैं दे रही हूँ. एक ही फर्स्ट फोटो, इफ यू कैन you enlarge it?
ओके, तो ये है मिल वर्कर्स के हाउसिंग जो न्यू हिंद टेक्सटाइल काला चौकी में है। और ये दिख रहे ऐसे, और जो लोग उधर रहते हैं, जो मिल वर्कर्स को मिली है जो उधर रहते हैं, वो तो उनको तो बड़ा अभिमान है, गर्व है कि, और उनको भी नहीं, बाकी भी जो मिल मजदूर है और जिन्होंने काम किया है ये हाउसिंग रियलिटी में लाने के लिए, उनको भी इस पे अभिमान है, क्योंकि ये आसान नहीं था। ये बड़ी लंबी सफर है, और 15-20 बरस की, जो बड़ी कल्पकता से जो गिरणी कामगार संघर्ष समिति ने ये हासिल किया है। you can now get out of it, it's okay, or you can keep it, yes, I know, okay, yeah. So ये एक अभूतपूर्व इतिहास है, क्योंकि ये पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। और जो ये हुआ है गिरणी कामगार संघर्ष समिति ने और दत्ता इसवलकर के नेतृत्व में, और उनके साथी गायत्री सिंह इधर है, मीना मेनन, प्रवीण घाग, विठल घाग, ये सब लोगों ने जो बहुत वर्षों से मेहनत की है, उसका ये फल है। और जो अलग सी ये यूनियन है, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण है। सिर्फ रास्ते पे आके हमारी मांगे पूरी करो, ये तो है ही ये, लेकिन जब भी ये रास्ते पे उतरे हैं मिल वर्कर, क्या हो रहा है? People should mute the thing. Everyone should mute except Dira. या हाँ, तो ये सबकी मेहनत जो है वो बड़ी कल्पकता से उन्होंने ये आंदोलन 20-25 बरस से उनकी लड़ाई चालू है, अभी भी चालू है, क्योंकि ये घर है वो सबको नहीं मिले हैं। अभी एक 5-6 हजार घर शायद अभी तैयार हो गए, लेकिन 14,000 मिलेंगे। उसमें एक उसके जो एक डेंजर, जो एक धोखा अमिता ने यहाँ बताया, उसके बारे में हम शायद बाद में बात करेंगे, वो भी धोखा उसमें है। लेकिन हमेशा जब जो गिरणी कामगार संघर्ष समिति ने जो मुद्दा उठाया, उसके बारे में उनका एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन या सजेशन था, और वो सजेशन लेके ही उन्होंने मालिक हो या गिरणी ओनर हो या सरकार हो, उनके साथ डायलॉग किया है। तो ये मैंने कहा ये पहली बार ऐसे हुआ है कि मजदूरों ने अपना जो बेसिक मुद्दा रहता है, पूरे इंजीनियरिंग या फार्मास्यूटिकल जो कुछ हमने देखे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो कुछ आंदोलन हुए हैं, वो आंदोलन मेनली तो वेतन और यानी उत्पादन जो होता है उसका वेतन मिलता है, उसका बोनस होता है, उसके वो विषय से लेके हुए थे। लेकिन ये पहली बार, मुझे लगता है पहली बार गिरणी कामगार संघर्ष समिति ने ये मुद्दा उठाया कि अगर आप मिल नहीं चलाना चाहते हो तो हमें दे दो, हम मिल चलाएंगे, और अगर आपको जमीन बिक्री करनी है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि जमीन पे हमारा भी हक है। यह बहुत महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट था, और उससे लेके ही हमेशा संघर्ष समिति आगे बढ़ी है। तो एक उसका बैकग्राउंड एक ऐसा है कि 1980s अर्ली 90s में आर्थिक नीति बदल गई थी, निजीकरण आया था, खुली अर्थव्यवस्था हो गई थी, और उसमें रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा था, लैंड डेवलपमेंट का। तो जो मिल ओनर थे उनको मिल्स नहीं चलानी थी। मिल नहीं चलाने के भी बहुत कारण है, वो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन उनको एक बड़ा आकर्षण था कि ये पूरा जमीन है, एक मिल का करीब 10 से 12 एकड़ जमीन होता है, और वो जमीन को डेवलप करना, उसमें मिल नहीं चलाना, उसमें उनका बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट था। और तो उन्होंने प्रेशर डाला सरकार के ऊपर कि हमको मिल नहीं चलानी है, हमको जमीन बेचने का अधिकार दे दो।
और दूसरी तरफ मिल मजदूर थे, उन्होंने भी ये बोला कि बंद गिरणी जो बहुत हुई थी उनको चालू करने दो और चालू होनी ही चाहिए, और हम ये बिक्री के बहुत खिलाफ है। तो इस प्रकार के माहौल में फिर और मिल मालिकों का प्रेशर क्या होता है, कौन से तरह तरह के लेवल पे होता है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन गिरणी कामगार जो है उनका भी एक हिस्ट्री है, उनको एटलीस्ट वो टाइम के गवर्नमेंट थे, वो जानते थे, उनको एक ये जान थी, एक अवेयरनेस था कि उनका सैक्रिफाइस क्या है और उन्होंने अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए कितना योगदान दिया है। तो लेकिन फिर भी ये बैलेंसिंग एक्ट करना सरकार के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर मिल मालिक बहुत ही प्रेशर डालते थे तरह के। तब चार्ल्स कोरिया कमिटी एक सरकार ने अपॉइंट की, उसकी दो बातें हैं। चार्ल्स कोरिया कमिटी के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। अगर हम पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो यह है कि उन्होंने ये मिल की जमीन टुकड़े टुकड़े में नहीं देखी, एक पूरी जमीन जो 600 एकड़ करीब 25 मिल की जमीन है, वो पूरी एक संध देखी, और उन्होंने बोला कि ये हम उसका विकास करना है, तो वो पूरा का पूरा विकास हम लोग गिरणी मालिक को नहीं देंगे। यानी कि वो प्लान में उन्होंने ये एकदम स्ट्रांगली बोला था कि जमीन के 3 हिस्से हो गए, एक ही हिस्सा जमीन मालिक को मिलेगा, एक हिस्सा म्हाडा को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मिलेगा, जो म्हाडा हमेशा हाउसिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रही है, और तीसरा हिस्सा बीएमसी को खुले मैदान या गार्डन्स के लिए विकसित करने को मिलेगा। यानी कि उनका दृष्टिकोण पूरा शहर का था। निगेटिव बात ये थी कि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा, चार्ल्स कोरिया ने, कि मिल चल भी सकती है और मालिक के हिस्से में वो मिल उनको चलाना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने मिल वर्कर्स का, मजदूरों का बिल्कुल ही मीनिंग वो सवाल को देखा भी नहीं उन्होंने, और ये तो नेगेटिव बात थी दोनों। इसका कड़वा विरोध हो गया था सब संगठनों से की भी, और गिरणी कामगार संघर्ष समिति, कि हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जमीन बेचना ये मान्य ही नहीं है। तो और उन्होंने फिर कुछ डेडलॉक हो गया, क्योंकि ये मिल मालिक तो नहीं चाहते थे बिल्कुल कि अपना कोई अपनी जमीन पब्लिक पर्पस के लिए दे दे, और मजदूर संगठनों ने भी इसका विरोध किया था। तो फिर ये डेडलॉक से बाहर आने के लिए गिरणी कामगार संघर्ष समिति ने एक 3-4 सुझाव दिए। उसमें से एक उन्होंने बोला कि हमको एक तो अगर गिरणी बंद हो ही रही है, मिल बंद ही हो रही है, तो एक जो नया कुछ उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें हमारा उस गिरणी कामगार के परिवार का एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, फिर वीआरएस मिलना चाहिए, और जो घर के लिए चार्ल्स कोरिया का जो प्लान है, वो घर के लिए जो एक हिस्सा है 1/3, वो पूरा का पूरा हमें मिल मजदूरों के घरों के लिए देना। अभी ये मांग भी कभी पहले हुई नहीं थी, लेकिन ये बहुत, मैंने जैसे बोला कि दत्ता इसवलकर उनके सहकारी वो बहुत इनोवेटिव है, बहुत कल्पकता है, और उन्होंने ये जटके मुद्दा लिया कि हमको यहीं पे घर चाहिए और हमारे घर चाहिए। तो बाकी संगठनों ने इसका भी विरोध किया। जब ये 3-4 सुझाव गिरणी कामगार संघर्ष ने सरकार के पास रखे, तो उन्होंने भी बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो जमीन बिक्री को मान्यता दे रहे, इसका ही मतलब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही उसको आप मान्यता दे रहे हैं। अभी ये कठिन समय था, लेकिन जैसे दत्ता इसवलकर जी ने अपने बुक में भी लिखा है, बोला कि वो लिखते हैं कि हमारे सामने सिर्फ कामगारों का हित था। यानी ऐसे ही बैठना जो स्टेटस को हुआ था
मालिक धमका रहे थे कि आप नौकरी, एक तो VRS लोन है तो हम बंद करेंगे गिरणी, और फिर जिनके घर क्वार्टर्स थे उनको भी बाहर निकाल रहे थे गिरणी मालिक। तो ये सब माहौल में गिरणी कामगार संघर्ष समिति ने अपना हक ये जमीन पे अधिकार मांगा कि ये गिरणी की जमीन पे भी हमारा अधिकार है। और सिर्फ वो अधिकार ही नहीं, गिरणी जमीन पे ही नहीं, जो विजन है दत्ता ईश्वरकर जी की, उन्होंने बोला कि ये जमीन की नहीं, हम पूरा गिरणगांव जो है वो जमीन का प्लानिंग पे भी हमको उसमें उसमें कुछ कहना है, और हमारी राय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी जगह है। वहां जहां पहले वो बोलिंग एली आई, फिनिक्स मिल्की वगैरह, तब उन्होंने पूरे शहर के जो आर्टिस्ट लोग थे उनको और जर्नलिस्ट को एक साथ किया, यानी कि एक गिरणी जमीन से लेके उसके बाद उस गिरणगांव की जमीन और फिर पूरे शहर की जमीन के बारे में वो बोले कि हमको बात करनी है, क्योंकि गिरणी के जो मजदूर है उनका पूरा शहर पे भी पूरा हक है। तो ये सवाल सिर्फ मिल मजदूरों का नहीं है। और ये कह के उन्होंने बहुत सारे संगठन इकट्ठा लाए, और जो संगठन जो पहले बहुत ब्यूटीफुल और क्लीन बॉम्बे की बात करते थे, एनवायरमेंटल ग्रुप्स थे वो, और वो जो बोल रहे थे कि हमको स्लमलेस मुंबई चाहिए, ये हमको स्लम दिखने ही नहीं चाहिए, वो साथ में मिलके मीटिंग्स करते हुए उन्होंने बाद में उनकी डिमांड ऐसे ही कि सब स्लम ड्वेलर्स को उनको अच्छे घर मिलने चाहिए, उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। तो ये बहुत सारे मुद्दे एक मिल मजदूर यूनियन ने आगे लाए और ये शहर के मुद्दे बन गए। हम जो देख रहे हैं कि एक तो इनको एसेट मिल गया है, लेकिन ये इसका प्लानिंग क्या है, मैं सिर्फ 1-2 मिनट बोल के मैं आगे जाऊंगी, यानी कि दूसरे बोल सकते हैं कि हम कोविड का भी जिक्र कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जून में जब लॉकडाउन था तो दत्ता ईश्वरकर जी ने और मैंने बात की कि ये, और जितेंद्र आव्हाड ने पहले ही, जैसे धारावी में बहुत सारे कोविड केसेस थे, तब उन्होंने अनाउंस किया कि अभी धारावी का पुनर्विकास मेरा प्रथम उद्दिष्ट होगा और ये मेरे एजेंडा पे, हम लोग इमीडिएटली वो करेंगे, उसका विकास करेंगे। तभी हम दत्ता ईश्वरकर जी ने एक लेटर लिखा उनको, और उन्होंने कुछ मुद्दे निकाले। वो मुद्दे ये है कि जब पुनर्विकास आप कर रहे हैं तो पुनर्विकास करने में जो हमने देखा है आज अब तक जो पुनर्विकास हो गया है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं। एक तो उनमें डेंसिटी बहुत रहती है, आप जमीन नहीं बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ FSI बढ़ा रहे हो। इसका मतलब ज्यादा और ज्यादा लोग आ रहे हैं लेकिन उनके लिए जमीन बहुत कम है। जमीन कम है इसलिए can you Bilal, can you show the slides? Is it possible? Okay, that's okay. Yeah, next. Yeah. Just go ahead. जैसे ये आप सब लोग जानते हैं ये सब पुनर्विकास की अवस्था क्या है, और मेनली 2 बिल्डिंग के बीच में इतने कम जगह रहती है, और बिल्डिंग और उसका ये है उस कंपाउंड वॉल उसमें भी कम जगह रहती है कि कभी भी ये कोविड के टाइम बोलो, नहीं तो फिर कोई भूकंप आया, कोई भी आपत्ति आती है तो लोग कहाँ जाएंगे। अभी कोविड में हमने देखा, जैसे श्वेता भी बोल रही थी कि हम लोग जो चाल में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान था, बाहर आने के बाद थोड़ी खुली जगह मिलती है। बस्ती में भी आप बाहर आए, गली रहती है, छोटे छोटे चौक रहती है, चाल में गैलरीज रहती है, लेकिन ये जो ऐसी इस प्रकार की डेवलपमेंट है उसमें लोग रीडेवलप में 24 माला 30 माले पे रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे, और उनके लिए ये बहुत असुरक्षित जगह हो गई थी। अगर ये सब विचार में आप नहीं लेंगे नया पुनर्विकास करने के लिए तो कुछ उसका मतलब नहीं है। उन्होंने और भी ये लेटर में लिखा था कि जो
ये सामूहिक जगह है जो चाल में है। नेक्स्ट, कैन यू शो नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, अभी ये जो है वो न्यू हिंद टेक्सटाइल की उस एटलीस्ट, और दिस वन और दिस द जस्ट वन बिफोर दैट। हाँ, ये जो मिल वर्कर्स की हाउसिंग है, ये इसमें भी FSI ज्यादा दिया है, और लेकिन उसमें फायदा ये है कि दूसरे पुनर्विकास की तरह यहाँ कोई पहले रहने वाला था और उनको पहले उन्होंने जगह दी और बाद में सेल कंपोनेंट, ऐसा नहीं हुआ है। ये जगह मिल की खुली थी, इसलिए ये आपको जो खुली जगह दिखती है, बीच में गार्डन वगैरह किया है म्हाडा ने, उसका कारण ये है कि उनको उधर जगह, वो जो पूरी लैंड थी वो लैंड हाथ में मिली थी। लेकिन जैसे हमने पहले जो देखे स्लाइड्स, उसमें तो कम से कम जगह तो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स को दी जाती है और अच्छे से अच्छे जगह सेल कंपोनेंट को दी जाती है। जैसे मैं बोल रही थी कि बस्ती में नहीं तो चाली में, नेक्स्ट आप ये चाल देखेंगे गिरणगांव, कालबादी, कहाँ पे, यहाँ आप देखिए कि बाहर की गैलरी होती है, अंदर का कोर्टयार्ड होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये सब पैसेज के है, वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बच्चे लोग बाहर आ सकते हैं, औरतें बाहर आ सकती है। ऐसी सामूहिक जगह अपने रीडेवलपमेंट प्लान में बिल्कुल नहीं होती, और कोविड के समय ये ज्यादा और ज्यादा महसूस होने लगता है कि ये ऐसी जगह के बहुत बहुत आवश्यक है। तीसरी बात उन्होंने आवाज जी को बोली थी कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, आप ऐसे मत सोचिए कि यहाँ सिर्फ माँ बाप और बच्चे रहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, वो भी रहते हैं बस्ती में, और वो कोई एक मालिक होता है, वो एक खोली देता है भाड़े से उनको। तो उसके बदले जब नया प्लानिंग हो जाए तब इनके लिए भी सुविधा चाहिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए सुविधा चाहिए। और माइग्रेंट वर्कर सिर्फ पुरुष नहीं होते, बहुत सारी औरतें भी होती है, तो उनके लिए भी ये जगह चाहिए। तो एक तो सामूहिक, तरह तरह के सामूहिक जगह, अलग अलग जो रहवासी है उनके लिए खास डिजाइन की हुई जगह, ये और DCR में भी जो चेंज करना है कि आप कम जगह छोड़ते हो, 2 बिल्डिंग में और कंपाउंड वॉल में, ये बहुत डेंजरस है। तो ये प्रकार के सुझाव देके वो तो पत्र दिया था, लेकिन ये पत्र की खत की कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं अभी तक मिली है। उन्होंने ये भी सोचा कि हम एक मीटिंग करेंगे, लेकिन वो मीटिंग भी उन्होंने नहीं दी है। मैं अभी इतना ही बोलूंगी, अगर कोई सवाल वगैरह हो गए तो हम आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू। Thanks a lot, Neera. I think Sharad has got in. Yes. Sharad, आप आ गए ना अंदर? Yes. So if you can start. Please. Yeah. तो मैं शरद महाजन हूँ और मशाल संस्था का मैं काम देखता हूँ। ये जो आज का सब्जेक्ट है उसके बैकग्राउंड के लिए मैं कुछ डेट्स बताना चाहता हूँ कि पहला ये हाउसिंग का जो इश्यू है और गरीबों के हाउसिंग का इश्यू है, इसमें 1971 मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट डेट ईयर है, क्योंकि स्लम एक्ट उस दिन वो साल में आ गया। उसके पहले जो स्लम्स में लोग रहते थे उनको बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, मतलब और गवर्नमेंट का एटीट्यूड यही था कि गलीच वस्ती निर्मूलन विभाग हर एक कॉर्पोरेशन में होता था, इनको निकाल देना, यही अप्रोच था 71 में। एंड आई वुड से दैट ये डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा एक्ट आ गया कि स्लम को डिक्लेयर करके, नोटिफाई करके अर्बन लोकल अथॉरिटी कुड एंटर द स्लम एंड प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज में टॉयलेट्स, पानी और बिजली, ये चीज हो गया, और फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट ऐसी चीज होने लगी। तो ये 71 का डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। 76 में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया, उससे यूफोरिया आ गया कि अभी गरीबों को जमीन मिलने वाली है, मकान मिलने वाला है। उसका बहुत कुछ हुआ नहीं है, उसके बाद डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद में 1991 बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, कि जब नरसिंह राव का गवर्नमेंट था और उन्होंने LPG का मंत्र गाना चालू कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और उससे
तो मुझे लगता है कि हर सेक्टर में परिणाम हुआ और हाउसिंग में बहुत परिणाम हुआ, क्योंकि उसके बाद में ही लोग सोचने लगे कि भाई ये गवर्नमेंट से नहीं होने वाला है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए। लोग पीपीपी की बात करने लगे वगैरह। और 95 उसके आगे का जो साल बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां बम्बई एसआरए का निर्माण हुआ। एंड उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जरा देखने जैसे है, क्योंकि बाल ठाकरे ने सोचा कि भाई ये कांग्रेस का जड़ हटाने के लिए लोगों को कुछ ऐसा गाजर दिखाना चाहिए कि जिससे वो अर्बन वोटर्स अट्रैक्ट हो गए, और उसके लिए फ्री हाउसिंग वाज द मोस्ट परफेक्ट पॉपुलिस्ट कार्ड ही प्लेड। एंड वो टाइम का जो दिनेश अफजलपुर का रिपोर्ट है, वो मुझे याद है, उन्होंने वर्कआउट किया था कि बम्बई में 13 लाख मकान बनने चाहिए और सब झोपड़पट्टी वासियों को मकान मिलने चाहिए, और वो भी अच्छे मकान। शुरुआत में उनका एरिया कम था, 225 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का था। तो वो मकान बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, तो गवर्नमेंट क्या देगी, तो एफएसआई बढ़ा के देगी। एफएसआई बढ़ा के देगी ताकि डेवलपर इतना मकान बना सकते कि सबको मुफ्त में मकान दे देवे, और जो रईस लोगों के लिए मकान बनाएंगे उसमें इतना प्रॉफिट कमाएंगे कि वो प्रॉफिट से वो रईस लोगों के मकान, गरीबों के मकान और खुद का प्रॉफिट, ये सब हो जाएगा। इतना ही नहीं, तो लैंड का भी इशू सॉल्व करेगा। प्राइवेट लैंड होगी तो लैंड ओनर को भी कुछ एडजस्ट करके कुछ पैसा मांडवली करके पैसा दे देगा, ये भी सोचा था उसने। So this was amazing solution, and a lot of credit goes, political credit of course goes to Bal Thackeray, but the administrative system में वो बिठाने का क्रेडिट जाता है दिनेश अफजलपुर को। और अब तक देखा तो बम्बई में ये जो वो टाइम का एस्टिमेट था 13 लाख मकान बनाने के, तो उसमें से 3 लाख तो मकान बन गए, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख मकान बन गए और लोगों को दिए भी गए। शुरुआत को 225 स्क्वायर फीट के थे, बाद में बढ़ाते बढ़ाते 279 स्क्वायर फीट के बन गए। अभी धारावी जैसे एरिया में वो बोलते थे 300 स्क्वायर फीट का देंगे, और रामदास आठवले बोलते हैं 500 का मकान चाहिए। वो तो चलता ही है। लेकिन रिसेंटली मैंने जो स्टैटिस्टिक ढूंढ के निकाला है, तो ये जो बम्बई एसआरए है, उन्होंने अभी टेंडर निकाला है गए 15 दिन पहले कि भाई अभी 16.4 लाख मकानों का हमको जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका सर्वे करने का है। इसका मतलब ये 3 लाख मकान बन गए तो भी 16.4 लाख लोग अभी भी झोपड़ी में रहते हैं। तो मतलब जो पहले एस्टिमेट था 1995 में 13 लाख मकान झोपड़ी वाले थे, तो वो ऑलमोस्ट 20 लाख मकान हो गए। मतलब ये जो प्रोजेक्ट था एसआरए विल सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, वो टू सम एक्सटेंट अचीव हुआ, लेकिन उससे प्रॉब्लम कम नहीं हुआ, प्रॉब्लम बढ़ गया। उसके बाद में का इम्पोर्टेंट साल है 2005, मेनली फ्रॉम पुणे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो टाइम पे पुणे नागपुर में भी वही एसआरए मॉडल चालू करने का एक्सेप्ट हुआ, और पुणे में भी गए 15 साल में 10,000 मकान बन गए। और आज अभी मार्केट बहुत डाउन है, इसीलिए कोई डेवलपर भी नहीं आता, और कोई देयर इज नो, इट्स एसआरए इन पुणे नागपुर इज लाइक अ डेड हॉर्स, और मुंबई में वो मरते मरते चल रहा है, ऐसा है। लेकिन उसके बाद में का, और लास्ट डेट मैं बोलना चाहता हूँ 2015, जब हमारे ये जादूगर प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने बोला कि हाउसिंग फॉर ऑल 15 में जो पीएमएवाई का ऐलान कर दिया, और उसने तो बहुत बड़ी बड़ी कि भाई इतने बिलियन मिलियन के कुछ मकान बनाएंगे वगैरह वगैरह, और उसके 4 वर्टिकल्स है। उसके भी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है। तो 4 वर्टिकल्स में आप देखेंगे तो उसमें बोले कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एक ही सेंटेंस में बोलने का है। तो पीएमएवाई ने बोला था कि भाई ये जो मकान बनाने का है, वो उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, वो मार्केट करेगी, और हम लोग सब्सिडी देंगे। और कितना सब्सिडी देंगे, तो भाई अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज सब्सिडी देंगे। तो उसमें भी चालबाजी देख लो। 2015 में जब ये पॉलिसी आई, तो उन्होंने बोला कि जिनका आमदनी महीने का, फैमिली का आमदनी 25,000 से कम होगा, और ऐसे ही मकान जो बिल्डर बनाएगा कि जिसका एरिया 30 स्क्वायर मीटर से भी कम होगा, उनको ही हम सब्सिडी देंगे। और 1-2 साल के बाद में वो एरिया बढ़ा के 60 स्क्वायर मीटर कर दिया। इनकम जो 25,000 था वो 60,000 कर दिया। उसके और दो साल के बाद में उसका एरिया 90 स्क्वायर मीटर कर दिया, और इनकम 1,20,000 कर दिया।
और अभी का जो पॉलिसी है PMAY सब्सिडी मिलने के लिए आपको 120 स्क्वायर मीटर का मकान भी आप लेके तो भी सब्सिडी देंगे, और आपका इनकम 1.5 लाख रुपीज पर मंथ होगा, मतलब तो भी हम आपको देंगे। मतलब आस्ते आस्ते ये जो PMAY का जो क्राइटेरिया है वो बदलते बदलते वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लिए हो गया। हम लोग, हमारी जो संस्था है वो काफी क्लोजली गवर्नमेंट के साथ करती है। इसके पहले जो JNNURM प्रोजेक्ट है उसमें भी हमने कम से कम 2,500 मकान बनाए कि जो पीपल्स पार्टिसिपेशन से बनाए, और 3 लाख में मकान बनाए, और हर मकान इंस्टीट्यू था, मतलब वही जगह के बना दिया। अभी वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात अभी पुणे में कम से कम 10,000 लोगों को ये PMAY का सब्सिडी सैंक्शन हो गया है या मिल गया है। उनमें से एक भी आदमी झोपड़पट्टी वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइटल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जो मगरपट्टा है, नाइक नवरे डेवलपर है, रोहन डेवलपर है, ये सबको जिन्होंने उनसे उधर फ्लैट्स लिया 40 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, उनको सब्सिडी मिलती है, प्रोवाइडेड दे शो दैट देयर इनकम इज लेस देन 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। तो मतलब ये गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट का बजट काफी बड़ा है। PMAY का बजट 1.6 लाख करोड़ रुपीज का है, और पैसा जा भी रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू द राइट स्पॉट। एज Amita has said that there are a lot of schemes, but it doesn't reach to the right. तो उसका एक PMAY एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी कुछ लोगों ने जिक्र किया कि रेंटल हाउसिंग इज द सॉल्यूशन, गवर्नमेंट इज थिंकिंग लाइक दैट एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें पुणे के ऑल 486 स्लम के हर एक मकान में जाके उसका नक्शा भी बनाया और उसका स्टडी भी किया, स्लम एटलस भी निकाला, और उस पर से ऐसे पता चलता है कि हमारे झोपड़पट्टी जो रहती है वो इनफॉर्मल सेटलमेंट है, एंक्रोच है, बराबर है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो जमीन मिलता है उस पर लोग रहते हैं। तो डेंसिटी इन थोड़ी टेक्निकल टर्म में बोलना चाहता हूँ कि डेंसिटी इन पुणे स्लम्स इज अबाउट 390 टेनामेंट पर हेक्टर। बम्बई में हम लोगों ने धारावी का भी सर्वे किया था, वहाँ वो ऑलरेडी 500 के ऊपर है, और कोई स्लम ऐसे ही कि जहाँ टेनामेंट डेंसिटी इतनी गीच है, एरिया इतना कम है कि वो 600 के आसपास भी चली जाती है। बट पुणे कंपैरेटिवली द स्लम सिचुएशन इज बेटर, वेयर टेनामेंट डेंसिटी इज 390। और दूसरी एक मैं बात आपको स्टडी के इस पर स्टडी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई रेंटल हाउसिंग गवर्नमेंट ने करना चाहिए वगैरह, लेकिन स्लम्स में, पुणे के स्लम में 22% ऑफ द हाउसेस आर रेंटल हाउसेस। तो ये बहुत बात है कि भाई गरीबों को रेंटल हाउसेस, फॉर्मल हाउसेस ये सॉल्यूशन है ही नहीं। ये इनफॉर्मल हाउसिंग में लोग क्या करते हैं, ऊपर में और एक माला चढ़ाते हैं, वो रेंट पे देते हैं, नीचे खुद रहते हैं, और वाइस वर्सा। तो रेंटल हाउसिंग, government getting into the rental housing for the poor is very utopian. It doesn't work here. MHADA started with the rental housing and ultimately they converted into ownership housing. उनसे वो rent collect करना नहीं जमता है. There are a lot of issues. तो rental housing का बात चलता है, लेकिन कुछ वो right line पे नहीं है. तो और वैसे देखा तो मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, तो मैंने कम से कम 15-16 SRA की स्कीम्स कंप्लीट किया है, 25 माले का बिल्डिंग भी बनाया है। लेकिन ये पूरा अनुभव के साथ और एनजीओ के अनुभव के साथ हमको लगता है कि फॉर्मल हाउसिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर हाउसिंग फॉर द पुअर। जो इनफॉर्मल हाउसिंग है तो उसको स्ट्रेंथन करना, उसको लेजिटिमेसी देना, ये इम्पोर्टेंट है। पुणे में 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑक्यूपाइंग ओनली 1.5% ऑफ द लैंड, और वो लैंड भी गवर्नमेंट नहीं ले सकती क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है। नहीं तो देयर आर वेज ऑफ एक्वायरिंग द लैंड्स। मुझे लगता है कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए, और ये जो लोग जो ऑक्यूपाई करके रहे उनका रजिस्ट्री बनावे, उनको इम्प्रूवमेंट का हक देवे, और वो उनको बेसिक सर्विसेज दैट इज पानी, बिजली और संडास का कनेक्शन दिया, तो मुझे लगता है कि लोग अपना अपना पैसा का जुगाड़ भी करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे उस पर। ये जो फॉर्मल हाउसिंग है, वेदर इट इज SRA हाउसिंग और PMAY हाउसिंग, दो एज अ प्रोफेशनल आई मेड good money by doing that type of housing. I feel if you are talking about the real issues, then that
that is not a solution at all, and it is not viable at all, or it's not going to work because our economy is going down horribly bad. और ऐसे सिचुएशन में बिल्डर लोग आगे आना ही नहीं चाहते. पुणे का एसआरए का उनका जो ऑफिस है उसमें तो आजकल तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं आता, बिल्डर तो छोड़ो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स नहीं है. अभी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का मुद्दा बोल के मैं मेरा बोलना खलास करता हूँ. और जो लोग पैसा, जिनके पास पैसा है वो लोगों ने गरीबों को मकान में काम करना चाहिए. गवर्नमेंट का बेसिकली पॉलिसी है, एसआरए का बेसिस वही है कि भाई आपके पास पैसा है, आप और पैसा बनाओ, लेकिन साथ में पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करो, गरीबों को मकान दे दो और वो भी मुफ्त दे दो. और इतना मुफ्त दे के ऊपर 40,000 रुपए डिपॉजिट दे दो, ताकि उसको मेंटेनेंस जो होता है 1,000 रुपए पर मंथ लगता है, उसमें उसको थोड़ा सब्सिडी मिल जाए. ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है. तो ये लोगों की, जिनके पास पैसा है वो पैसा कहाँ डालते हैं कि जहाँ रिटर्न ज्यादा है. सपोज वो कोई अच्छे शेयर्स में वगैरह डाला तो 8-10% उनको मिल जाता है, एफडी में डाला तो 6% मिल जाता है. लेकिन रेंटल हाउसिंग, फॉर्मल रेंटल हाउसिंग वो बनाए, उस जमीन में इन्वेस्ट करे, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करे, तो एक 30 स्क्वायर मीटर का मकान पुणे में बनाने के लिए अंदाजे 15 लाख रुपए खर्च आता है. मल्टी स्टोरी 12 माले का बिल्डिंग होता है, उसमें स्टील का सीमेंट ज्यादा लगता है और ऑल दिस थिंग. और इसमें जमीन की कीमत नहीं पकड़ता हूँ, तो 15 लाख में ये मोदी सरकार कुछ 1.5 लाख देगा, ठाकरे सरकार भी 1 लाख देगा, तो 2.5 लाख सपोज मिल गया तो भी उसको 12 लाख 12.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ही 30 स्क्वायर मीटर का फॉर्मल मकान जमीन के कॉस्ट के बिना उसको मिल सकता है. और ऐसे मकान की पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रही है. काफी बिल्डर लोगों ने, जो उन्होंने बहुत पहले से जमीन लेके रखी, वो भी ऐसे मकान बनाते हैं. और पुणे में government sector is creating about 6,000 houses and private sector is creating another 6,000-7,000 houses. But जो लेने को जाएगा उसको 12 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अभी आज स्लम वालों की या गरीब लोगों की उतनी औकात नहीं है, कुवत नहीं है. पुणे का जो मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स की, जो जिनकी फैमिली की आमदनी 15,000 16,000 थी, वो अभी ये नोटबंदी के कारण और उसके बाद में कोरोना के कारण वो 13,000 तक आ गई है. और ये मैं काफी डीप रिसर्च के बाद में ये बोल रहा हूँ. तो 13,000 में या इवन 15,000 उनका फैमिली इनकम होगा तो वो ईएमआई कैसे भरेंगे, क्योंकि 10 लाख का भी लोन लिया तो कम से कम 7-8 हजार रुपए तो ईएमआई हो जाता है, और वो भी 15 साल के लिए. तो ये इकोनॉमिक्स कुछ फॉर्मल हाउसिंग का जमता नहीं है. और जो कोई स्लम्स नोटिफाई या नॉन नोटिफाइड होगी तो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर विथ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर काफी बढ़ गया है. मतलब वाटर लाइन्स गए, फुटपाथ, ये पूरा डिस्ट्रॉय करो और नया बनाओ, ये झमेला मुझे लगता है कि इम्प्रैक्टिकल है. हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, हमारे इसमें जो पैसे वाले लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें रिटर्न्स नहीं है. Rental housing is going to be a big flop because government cannot handle it and private sector finds no economic sense into it. तो informal housing है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनको रजिस्ट्री बनाना, उनको उनका लैंड इशू सॉर्ट आउट करने का करना, ये मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल है. और ऐसे किया तो मुझे लगता है कि अननेसेसरली बड़े-बड़े सपने दिखाने से, हाउसिंग फॉर ऑल, पीएमवाई, ये सब करने के बिना गवर्नमेंट ने कुछ ये लाइन पे सोचना चाहिए. और ये इसके बारे में हमने कुछ लिखा है. आई विल शेयर द पेपर वी हैव रिटन ऑन इट. वी हैव ट्राइड टू मीट द पीपल हु आर इन पावर. कुछ साल पहले हम फडणवीस साहब को भी मिले थे, उनको एक्सप्लेन किया था. अभी ठाकरे साहब को भी मिलके उनको भी एक्सप्लेन किया. लेकिन पॉलिटिक्स इज, दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज. बट मुझे लगता है कि इतने साल 35 साल ये सेक्टर में काम करने के बाद में कि फॉर्मल हाउसिंग की लिमिटेशंस हमारे इकोनॉमी में समझ लेना चाहिए और इनफॉर्मल हाउसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए. और जो कोई पीएमएवाई 2.5 लाख का सपोर्ट देता है उसके जगह 50,000 1 लाख का सपोर्ट देना चाहिए. और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो उसमें ऑगमेंट करना चाहिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है. अभी हम लोग ने पुणे में जो रिसेंटली सर्वे किया, वी आर रिविजिटिंग ऑल द स्लम पॉकेट्स एंड वी हैव फाउंड दैट individual water connection has reached to 98% of the families. Individual electric connection is 100% of the family. Individual sandas
with the drainage connection has reached to 60% of the family. तो ये इनमें अभी सिर्फ उनको फॉर्मल इनफॉर्मल जो हाउस उन्होंने जो कुछ ऑक्यूपाई किया है उसको जरा अपग्रेड करने में टेक्निकल सपोर्ट करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो और उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको स्ट्रक्चर का टेन्योर दे दो। इतना बोल के मैं मेरा बात खलास करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्मिता दा। हेलो, आई एम डन। Thanks a lot, Sharad. Thanks. Hussein, are you there? Hussein Yes, Indorwala. I'm here. Okay. Yeah, I'm here. Okay. Hi. Can you hear me? Yes. So I think all the three speakers have said quite a lot, and they're also speaking from a lot of experience, which I don't have. But I think one thing I can do though is, since I'm going to be speaking in English, I can translate whatever they said, and because most of what I have to say is kind of building on their arguments. So I think the topic for the discussion is COVID-19 and slums, and it is, and I'm going to speak mostly from the experience of Bombay. I don't know very much about other cities in the country and housing issues elsewhere. So in Mumbai, at least, redevelopment is a solution to all of Bombay's problems. Anything you take, whether it's infrastructure, whether it is environmental improvements, whether it is housing, the standard solution to every problem is redevelopment. And so it was not surprising that when COVID hit, very quickly there were calls for the redevelopment of slums, and it's immediately in the month of during the lockdown. In fact, there were multiple seminars and webinars organized by planners and architects and very prominent voices who started talking about redeveloping Dharavi. In fact, in one of these webinars, someone said that redeveloping Dharavi would be the biggest humanitarian intervention in the city of Mumbai. So, these are very lofty claims. So the question really is, what I'm going to do in very brief remarks is I'm going to talk a little bit about the political economy of the city. I'm going to talk a little bit about density, because that is something that has come up quite a bit during the COVID pandemic. I'm going to talk a little bit about redevelopment generally and slum redevelopment in particular, and then a few comments on Bilal's proposition about housing rights as to think about a law for of housing rights for the poor. Building on Neera's points about and she presented the struggles of the mill workers to get decent housing. And it's a little bit of context, political economic context is important. Bombay transitioned from an industrial capitalist city to a real estate finance capitalist economy. And even though there is still industry in the city, there is a decisive shift in the focus and the locus of the city's political economy. And why this is important especially is because when the city was an industrial capitalist city, there was a convergence of interest between the capitalists and the working class in one aspect, and that was that high land costs, which would translate into high housing costs, would impose costs on the capitalists. And there was therefore, when industrial capitalism was was a dominant power in the city, there were calls even from the elites to ensure that there is some kind of laws or some kinds of regulations that keep land prices in check. Rent control is one example. The acceptance of informal settlements and site and services schemes and so on is an example. But what happens is when the shift takes place, when industry moves out of the city, the only interest that the real estate industry has is to inflate land value.
And all of the kind of infrastructure development that we see in the city, whether it is freeways, whether it is these large cluster redevelopment projects, whether it's environmental improvement projects and so on, all of that have to do with metro systems and so on. All of them have to do with inflation of land prices. What that means essentially is that the poor are going to be simply priced out of the city even more than they were before. And which is essentially the context in which some of these problems emerge. And I think it's important to recognize that. And when that happens, another significant thing takes place, which is that the nature of planning itself has shifted. Planners earlier had dealt with a certain kind of contradiction, which was the interests of the city's dominant groups, but also having to ensure that working people can live in the city and so on. But today, most of what planning is about new ways of stimulating redevelopment and land value capture and so on. And this is what we see when I talk about redevelopment. I'll talk a little bit more about this. And the second question is about density. And it's interesting, there was a talk that was given by Ratan Tata soon after the pandemic hit, and he was talking about, we should think about housing for the poor and so on. And what was interesting was that this was a very similar situation to what had happened during the plague in late 19th century Bombay, when the city's mill owners started talking about, migrants are fleeing the city because of the plague. So we have to make sure that they can stay in the city in decent conditions so that we don't lose out on our workforce. So this intersection between labor, political economy, and housing is important to recognize. And that's the reason why some of these new announcements about housing for migrant workers, etc., it comes out of a concern about workers fleeing the city, and that is how we must also understand these new announcements, really. So when it came to density, I think it's important to distinguish, and this was not done at all. In fact, that density, when one spoke about density, there were lots of figures thrown around in the media, which had to do with, these generic density figures, like Dharavi's density is so much versus the rest of the city is so much. But it was not clear whether by density one meant the residential density or neighborhood density, and what how does density translate into living environments? And that's something that was not spoken about at all. Another thing that was not spoken about was, why is it, if it is true that there was a correlation between informal settlements and COVID cases, and I mean, our own study in April last year, in fact, showed that there was an inverse correlation between the extent of informal settlements in wards and the number of COVID cases. But even if we go with the argument that cases are higher in slums, we have to really try to understand why that is the case. Is it because the poor use public transport predominantly? Is it because working from home is not an option? Is it because most of them are essential workers? Is it also because the problems of cases have to do more with segregation than with the residential segregation and density? So, and the larger question here is targeting of slums as a public health concern actually a reflection of a failure of the health system, which it was. Incidentally, the question of slums and COVID should not even arise. If the health system was functioning, that would not even be a problem that would have been identified. But obviously, everything that goes on in the city today becomes an excuse for pushing for redevelopment, and that has to do with the interests of landowners and property developers in Mumbai. Now, coming to redevelopment, again, it's important to recognize that in Mumbai, planning is implemented by the real estate industry.
The state, even the plan making, in fact, is subcontracted these days. But the plans are made, but the implementation of the plan is dependent on the performance of the real estate industry. We have all kinds of what is called planning tools, which are accommodation reservation, TDR, etc. What these try to do is that if a land is identified as land for, say, open space or housing or health center and so on, the developer or the landowner will redevelop, create that amenity and hand it over to the government. So if the real estate market is not doing very well, basically you don't get public infrastructure in the city. And the same principle also applies for slum redevelopment, which is basically that if housing has to be created, it will be created by private developers and handed over to the state. A lot of people and some of people who also belong to, who are also committed to housing rights, critique the idea of free housing. But it's important to recognize that free housing is not free housing for the slum dwellers, it's free housing for the state. The state gets free housing made by developers, and that is done through the instruments of development rights and so on. So this is something that the problem really of the slum redevelopment scheme is not free housing. It is the mode of housing that is being done, and slum redevelopment essentially is not a housing scheme; it's a land financing scheme. So which is essentially how it should be, in my opinion, challenged. And obviously, as a result of that, in fact, we get the kind of housing that Meera showed us, which creates conditions of poor, environmental conditions, health problems, and so on. So, and what we're also seeing as a result of this kind of redevelopment that is taking place everywhere in the city for infrastructure projects, for housing projects, and so on, is that while the development rights which benefit landowners and land developers, these development rights move from low land value areas like, for example, the M ward, which is the redevelopment ward of the city. So development rights move from M ward to the western suburbs. A lot of people who live in land areas in the city, the poor especially, who live in land areas which are of high land value, are displaced and moved to these low land value areas. So there is a kind of a double movement that we are seeing, and this is increasing the kind of residential and socioeconomic segregation in the city, which is something that we need to point out and be worried about a lot. So coming now to the question of housing and how do we conceive of housing and how should we think about housing rights? The problem essentially is that if we say housing rights, I think today in this context, the government will say, fine, we'll give you housing rights. And I mean, in a way, PMAY is, can be considered a beginning of that. The whole thrust of creating affordable housing will be pushed even further. These kind of national schemes will be pushed further. It will just be more of the same. We will not be able to achieve any kind of significant or progressive improvements in the way in which we are thinking or doing housing. So I think it's important to recognize that the first and foremost we need to address when we talk about housing, the disparity of land distribution in the city. Mr. Mahajan mentioned the amount of area of slums in Pune. In Bombay, 25% of the residential land area actually houses 52% of the city's population. And what we're seeing with schemes like slum redevelopment and others is that the amount of land area that the poor today are living on is reducing day by day in the name of housing rights or in the name of providing housing for the poor. So it is in fact we should be talking about land redistribution where the poor should get more land than they already occupy in the city. The second thing that we need to talk about, and this is all the speakers mentioned this actually, is that protection from eviction through in situ and upgradation actually is a means of preventing evictions, because when the state invests in basic services and amenities, it is going to be less
likely to evict those areas. And we should also be a little careful about the kind of what Amita mentioned about the linking between property rights and financialization, where in many cases providing land titles to the poor is the way of not just releasing the land in the market, but also making the poor credit worthy so that they can borrow from banking institutions and so on. The third thing that we need to think about very carefully and talk about more is the idea of public goods. So it's not just basic amenities, but we need to talk about health, education, urban services, public transport. These are as important, or as, in fact, not distinct from housing, but they are very much a part of housing and living environment. The fourth thing that we need to think about is local control over decision making. Again, Amita mentioned this, and move away a little bit from this whole discourse of participation, where you get consent of earlier 70%, now 50% of slum dwellers, and so on, and talk about real, democratic control over decision making on things like, how should my built environment be, and so on, and the last one, which is also very important and which we rarely talk about, is that we need to talk about the creation not of formal housing, but of formal employment in the city. A large part of the housing crisis is a result of falling incomes and labor protections. And unless we are also able to link housing rights discussions with livelihoods and formal sector livelihoods, where there is protection to those livelihoods, we will not be able to think about the ability of people to afford decent quality living environments. Yeah, that's all I have to say. Thanks. Thanks, Hussain. Raju? हेलो. हाँ, यस. राजू. हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है. ओके. सभी वक्ताओं ने जो बात रखी, मैं थोड़ा अलग बात रखने वाला हूँ कि बेसिकली वर्कर हाउसिंग के बारे में हम क्या सोच सकते हैं आज के सॉल्यूशनिंग में उतर जाएगा ना. हेलो, प्रॉब्लम नहीं है, ये पहला 1-1.5 महीने का चलता है. Can everyone mute their mics? हाँ, मैं वर्कर हाउसिंग को आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे सोच सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा बात रख रहा हूँ. और मुझे लगता है कि इसमें काम करने की जो पोटेंशियलिटी है उसके बारे में सब लोग भी अपने मत दे सकते हैं. मुझे लगता है कि अगर हम वर्कर्स के बारे में अगर सोचते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है कि पब्लिक सेक्टर्स में जो वर्कर्स है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स में जो वर्कर्स है, उनके लिए पहले मकान बनते थे, क्वार्टर्स बनते थे. लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो वो बनाने की प्रक्रिया करीबन बंद हुई है. उनको गवर्नमेंट के अलग स्कीमों के साथ, जो दूसरे जेनरिक जो स्कीम है, जैसे PMAY का स्कीम है वगैरह, इस तरह के स्कीमों के साथ उनको आजकल जोड़ा जा रहा है. लेकिन उनके लिए जो स्वतंत्र हाउसिंग की जो स्कीमें थी या जो भी पॉलिसीज थी, उसमें काफी सरकार के स्तर पर और पब्लिक सेक्टर्स में जो अथॉरिटीज है उनके स्तर पर काफी बदलाव आए हैं. तो उसको अलग तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में पोजीशनिंग करने की जरूरत है. उसको हम कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं और वो वर्कर्स मूवमेंट का, उसे हाउसिंग का एजेंडा कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में सोचना जरूरी है. उसमें और 2-3 है, जैसे मिल वर्कर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो नीरा ने यहाँ पे प्रेजेंट किया. बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर्स के जो इंडस्ट्रीज है, उनके जमीन के ऊपर वर्करों का अधिकार कैसे स्थापित कर सकते हैं और उससे उनके लिए हाउसिंग का जो मुद्दा है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं. और दूसरा, काफी पब्लिक सेक्टर्स में भी इनफॉर्मल वर्कर्स बड़े पैमाने पे आज के परिस्थिति में काम कर रहे हैं. लेकिन ये इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो वर्कर्स है, इनके बेसिक
जो राइट्स है वो राइट्स जो है वो जो पब्लिक सेक्टर्स की जो इंडस्ट्री है या फिर गवर्नमेंट है वो उनको नहीं दे रही है। तो उनके हाउसिंग के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट के पास है, और वो जमीन के ऊपर इनके हाउसिंग की बात को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसको पोजीशनिंग करने की जरूरत है। उसके ऊपर कुछ स्टडी भी करने की जरूरत है आज के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा महत्व का जो वर्कर में जो सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है, और वो बेसिकली दो तरह की जो नीतियां है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। एक तो हमारे यहाँ पे जो जैसे MIDC का जो कानून बना है, तो वो पूरा डिजाइन करता है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया किस तरह से डिजाइन होगा। और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है खासकर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो सोच जो उसमें रहती है, ऐसे जितने भी पॉलिसीज हैं या कानून है, उसमें अगर हम देखते हैं तो वहाँ सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में ही ज्यादा सोचा जाता है। इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स है, मतलब जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जो वर्कर्स है, उनके हाउसिंग के बारे में कुछ भी उसमें मेंशन नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ये प्रिंसिपल माने कि कोई भी इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है, जो बिजनेस है उसका भी ग्रोथ जो है वो वर्कर के बगैर नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में वर्कर के लिए जो बेसिकली उसकी जो लिविंग कंडीशंस है या फिर उसका जो हाउसिंग का जो पूरा अधिकार है, उसको कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, उसको एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। तीसरा महत्व का मुद्दा है कि जो असंगठित क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पे जो अलग अलग कैटेगरीज है, एक कैटेगरी जो है कि जहां मालिक मजदूर रिश्ता है, और दूसरी कैटेगरी है कि जो मालिक मजदूर का जो रिश्ता है वो अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट है। तो ये दोनों रिश्ते में ये जो मालिक है जो मुनाफा कमाता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी हम कैसे फिक्स कर सकते हैं दो चीजों के लिए। एक तो कि वर्कर जब रहता है काम की जगह पे या फिर उसको सर्विसेज देते वक्त, तो उसकी जो लिविंग कंडीशंस है वो लिविंग कंडीशन बेसिकली फुलफिल मतलब इम्प्रूव हो, मतलब वो उसके बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है उसको मेंटेन किया जाए। और दूसरा कि पब्लिक से मतलब वर्कर्स हाउसिंग के लिए सेस कलेक्शंस का कुछ मैकेनिज्म विकसित हो सकता है क्या, किया जा सकता है क्या, खासकर जो वर्कर्स के लिए जो हाउसिंग बनाने की जरूरत है तो उसके लिए रिसोर्सेस लगेंगे। तो वो एक तो लैंड एक रिसोर्स हो सकता है और दूसरा रिसोर्स ये बेसिकली पैसा हो सकता है। तो उसमें दो चीजें हैं कि जब ये इनका जब प्लानिंग होता है, खासकर लैंड यूज प्लान बनाई जाती है MIDC के माध्यम से भी उनका प्लॉटिंग होता है, और पब्लिक सेक्टर्स में जो भी इंडस्ट्री आती है उसका भी एक डिजाइन होता है। तो उसमें वो डिजाइन में ही वर्कर हाउसिंग का जो कंपोनेंट है उसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, रिजर्व किया जा सकता है, उसके बारे में सोच हो सकती है। खासकर ये जो पूरा इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज है या जो MIDC जैसा एक्ट है उसमें। और दूसरा जो है कि जो पैसा लगता है तो उसके लिए जिस जो अलग अलग तरीके से जो सेस लगाए जाते हैं, तो इनके हाउसिंग के लिए सेस भी लगाया जा सकता है क्या, उसके बारे में सोचना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। जब ये माइग्रेंट वर्कर्स का मुद्दा आता है तो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर काफी सारी चर्चा हो रही है अपने सेक्टर्स में। तो उसमें तीन तरह के माइग्रेंट है, सिंगल माइग्रेंट है, सीजनल है और विद फैमिली है। तो उन तीनों के लिए अलग अलग क्या मॉडल हो सकते हैं, जैसे रेंटल का एक मॉडल जो है, ट्रांजिट का है और अफोर्डेबल हाउसिंग का है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अफोर्डेबिलिटी वाला जो मुद्दा है
तो वर्कर्स के इनकम के हिसाब से उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या होगी और उसके लिए किस तरह का मकान की जरूरत है, और फिर बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन करेगा। ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दे के ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और जो और दूसरा मुद्दा है, मतलब पांचवा मुद्दा है कि बेसिकली जो लैंड वाला जो मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि खासकर जमीन का पूरा, जब ये जो भी इंडस्ट्रियल टाउन या इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप होता है या कोई भी सिटी डेवलपमेंट प्लान बनता है, तो उसमें वर्कर्स के लिए क्या पोर्शन में लैंड जो है वो रिजर्व होनी चाहिए। मतलब एग्जिस्टिंग अभी जो स्लम के नीचे की लैंड है वो तो है, बट जो नए वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए भी किस तरह का प्रोविजन किया जाए, तो उसके ऊपर भी एक थोड़ा सोच, रिसर्च होने की जरूरत है, ताकि वर्कर मूवमेंट जो है उसको पोजिशनिंग कर सकते हैं, उस डिमांड कर सकते हैं। लास्ट मुद्दा मेरा यह है कि जो मकान बनाने के लिए, खासकर पब्लिक सेक्टर्स में मकान बनाने के लिए, पब्लिक सेक्टर्स की जो यंत्रणा है वो कैसी हो, क्योंकि मकान बनाने की जो अभी जो नीति है, जो शरद महाजन ने जिनने अभी जो प्रेजेंट किया है, तो ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं वो सस्ते मकान आज के परिस्थिति में बनाएंगे और वर्कर्स को उपलब्ध करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो इम्पॉसिबल है। और लेकिन मकानों की तो जरूरत है, तो वो मैकेनिज्म क्या होगा और वो कितनी सक्षम तरीके से मतलब जिस तरह से जितने घरों की जरूरत है वर्करों को, वो बनाने की जो यंत्रणा है वो सरकारी यंत्रणा कैसी हो, उसके बारे में भी हमको सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये जो वर्कर हाउसिंग का जो मुद्दा है उसको रीऑर्गेनाइज, रीपोजिशनिंग करने की जरूरत है, और ये वर्कर्स मूवमेंट का एजेंडा कैसे बने उस दिशा में हमको थोड़ा काम आगे काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ रुक रहा हूँ। थैंक यू। So we have actually run short of time. So I think we'll हम लोग डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे, और मुझे लगता है बिलाल 15 मिनट, और अगर बिलाल आप चैट बॉक्स में देख सकते, क्योंकि मुझे वो ये नहीं होगा ओपन करने के लिए, तो आप जरा चैट बॉक्स में देखकर लोगों को बुला सकते हैं बात करने के लिए। अभी तक कोई सवाल नहीं आया है चैट बॉक्स में, पर जिन साथी को बोलना है अगर वो रेज हैंड करेंगे तो भी हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। किसी भी साथी की कोई सवाल है, अभी तक वक्ताओं ने जो बोला उसको लेकर कुछ सवाल करना है या टिप्पणी देना है तो दे सकते हैं। एज अ चेयरपर्सन मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हेलो। हाँ, आप पूछना चाहते हैं? हाँ। Advocate Bastu Rege from Pune. Is it audible? Yes. See, we are basically we are delighted actually to hear a lot of these experiences of the Bombay and Pune and many other insights. We are working with the stone quarry workers in Pune and other parts of Maharashtra. Also, we are concerned with the housing issue. Also with the slum dwelling on the streets in Pune. So it was a wonderful discussion. Basically, would like to keep connected with long term. Our workers in the mining sector are living on the grazing lands, that is grazing lands or forest land, revenue lands.
There are the illegal encroachments there on those lands. We have been working that the land and title allotment to the families, but government is coming up with different proposals as shared by many prominent resource persons today. So there are a lot of questions. We have been working on these issues for last 23 years. I think we have to learn a lot of lessons from what the proposals are coming ahead from the Pune CEO regarding CSR. All those kind of these SRA proposals are coming up, and we are seeing the Bombay, Mumbai, Girni Kamgars buildings and struggles there. So it was quite nice. आवाज गई, क्या हुआ? आवाज गया शायद। या आप कुछ सवाल पूछने वाले थे उनका गया क्या? शायद। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर महाजन, हाँ सॉरी, अगर महाजन है अभी है क्या? नहीं, he left. Doesn't matter, then I don't have a question. Mashal NGO, there is someone, but he तो भी क्या सवाल है? आप सवाल ये था कि उन्होंने बोला कि फॉर्मल रिहैबिलिटेशन में न जाते हुए इनफॉर्मल में जाना चाहिए। तो मुझे सवाल पूछना था कि इनफॉर्मल को वो कैसे देखते हैं और कैसे करना चाहिए। इनफॉर्मल अगर हम फॉर्मल की अगर बात नहीं करेंगे, फॉर्मल में क्या क्या खामियां वो सबने बताया, लेकिन इनफॉर्मल के बारे में हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है उसके ऊपर ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुआ है। तो ये साइड एंड सर्विस स्कीम थी था। हेलो Gayatri, can I say something? Yeah, Hussein. तो इसमें ये जो सवाल है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला, पहले तो ये थोड़ा सवाल ये जो डिस्टिंक्शन है फॉर्मल और इनफॉर्मल का इतना क्लियर कट नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट में ये डिग्रीज का मामला है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर अपने यहाँ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो हम बोलते हैं, जहाँ पर लैंड किसी और का है और वहाँ बस्ती है, वो एक सिचुएशन है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लैंड टाइटल्स होता है लोगों के पास, लेकिन जिस तरह से घर बनाए हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सटेंशंस होते हैं, जितना परमिशन है उसके बियॉन्ड गया हुआ है। तो और कुछ ऐसी बस्तियां भी होती है जहाँ पर पहले वो अनरेगुलेटेड थे या अनऑथराइज्ड थे, फिर वो बाद में रेगुलेट होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी काफी सारे इनएडिक्वेसीज होती है। तो ये प्रॉब्लम को फॉर्मल और इनफॉर्मल में फ्रेम करना थोड़ा इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। और ऐसा भी नहीं है कि हर तरह का फॉर्मल हाउसिंग एंटी पुअर है। एक्चुअली ये जो नोशन है हमारा कि फॉर्मल हाउसिंग एंटी पुअर है, ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। और ये इस तरह से सोचना भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर हम अभी क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें जहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, और अगर हम ये इनफॉर्मल हाउसिंग का ही सिर्फ बात करेंगे तो काफी सारे वल्नरेबिलिटीज होते हैं लोगों के जो एड्रेस नहीं होते हैं। और जहां तक इनफॉर्मल हाउसिंग का इम्प्रूवमेंट्स का सवाल है, अगर हम सिर्फ बेसिक सर्विसेज की बात करेंगे तो बाकी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं शहर में जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो ये इशू को इस तरह से फ्रेम करना मेरे हिसाब से गलत है। हम किस तरह का फॉर्मल हाउसिंग का ऑपोजिशन कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। हर तरह का फॉर्मल हाउसिंग प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। जब म्हाडा पब्लिक हाउसिंग बनाती थी तो वो काफी डिसेंट क्वालिटी हाउसिंग थे। साइट एंड सर्विसेज स्कीम्स भी फॉर्मल हाउसिंग है, वो इनफॉर्मल नहीं है, वो इंक्रीमेंटल फॉर्मल हाउसिंग है। तो ये कैटेगरीज भी मेरे हिसाब से मिस्टेकन है और ये एडवोकेसी भी मेरे हिसाब से मिस्टेकन। शुक्रिया हुसैन। गायत्री जी, एक रिटन में चैट बॉक्स में एक सवाल आया है, मैं उसको रीड करता हूँ और उसके लिए जो भी उसको जवाब देना चाहते हैं। शुभम का सवाल है, नीरा, अमिता एंड हुसैन टॉक्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग।
Just want to know if the decision making as a principal Amita ma'am is talking is same as worker unions demand of right to participate in running the mill, deciding on the type of housing, and also the use of land apart from housing, or something more or completely less. कोई भी स्पीकर में से कोई अमिता कोई भी बात इसका जवाब दे सकते? Neera or Hussain, can you respond to this? Neera, are you there? Yeah, I'm there, but I'm not sure what was the focus. If you've understood, you go ahead. I can add if there is anything required. No, I think it's, I mean, obviously, when we talk about democratic decision making at the local levels, we mean decision making in about various things. But in particular, if you're talking about decision making with respect to land or with respect to a development and so on, I think there are, again, the way in which participation is conceived in जिस तरह से अभी SRA में consent होता है, वो बहुत लोगों से पार्टिसिपेशन कहते हैं, वो पार्टिसिपेशन नहीं है, वो कंसेंट है। वो बेसिकली प्रोजेक्ट आगे बढ़े उसके लिए एक ये है वैलिडेशन जैसा है, और वो किस तरह से वो सर्कममेंट होता है वो भी हमें पता है। जब हम लोकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वो जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्यादा करके कलेक्टिव हाउसिंग, कलेक्टिव लैंड राइट्स की बात नहीं करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बहुत दूसरे कंट्रीज में इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फर्स्ट राइट टू द ऑक्यूपेंट का एक पॉलिसी है जो आयरलैंड में है, जहाँ पर अगर लैंड ओनर को लैंड बेचनी है तो पहले वो ऑफर जो लोग वहाँ ऑक्यूपाई करते हैं वो लैंड को उनको जाती है, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है वो लैंड कलेक्टिवली ओन करने के लिए। तो इस तरह के जो कलेक्टिव ओनरशिप मॉडल्स है वो हमने एक्सप्लोर करने चाहिए। जब प्रोजेक्ट्स डिजाइन होते हैं वो किस तरह से बनने चाहिए, कितने लोगों के लिए बनने चाहिए, उनके उसका डिजाइन क्या होता है, वो लोकल डिसीजन मेकिंग है। जहाँ अगर हमें कुछ पब्लिक अमेनिटीज क्रिएट करने हैं तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए, ये सब इश्यूज और ये सब लेवल की डिसीजन मेकिंग अगर होगी तो हम उसे फिर लोकल पार्टिसिपेशन या डेमोक्रेटिक कंट्रोल बोल सकते हैं, नहीं तो वो पार्टिसिपेशन सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है रीडेवलपमेंट की। गायत्री जी, मैं ऐड करूं थोड़ा? हाँ राजू भाई प्लीज। गायत्री जी, एक्चुअली पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि बेसिकली जो पॉलिसी फ्रेमिंग है, मतलब पार्टिसिपेशन वहां से शुरू होता है। डिसीजन जहां जहां निर्णय होते हैं संबंधित रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी निर्णय होते हैं, और उसके लिए एक तो पॉलिसी फ्रेमिंग होता है, तो पॉलिसी फ्रेमिंग में पार्टिसिपेशन खासकर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। दूसरा, जब रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें उसका जो यूज होता है, क्योंकि लैंड हम रिसोर्सेस ही समझते हैं, तो डिजाइन में भी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। और फिर उसकी उपयोगिता, उपभोग लेने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में भी एक पार्टिसिपेशन और ओनरशिप। तो पार्टिसिपेशन और ओनरशिप ये पॉलिसी मेकिंग से शुरू होता है। उसका बेसिकली जो उपभोग लेना है, कलेक्टिव प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया में भी पार्टिसिपेशन, तो उसका अलग अलग रेंज है। तो अमिता ने जो बोला था बेसिकली प्रिंसिपल, पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल बोला था। तो पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल ये अलग अलग स्तर पर लागू होता है और हर स्टेज पे उसका महत्व है। मैं सिर्फ एक ऐड करूंगी यहाँ कि मिल मजदूरों के जो घर है तो वो बहुत सारे डिस्कशंस तो वर्कर्स के साथ हुए थे, और उसमें एक जो तय हुआ, जो शायद मैंने बोला नहीं, कि ये घर फ्री नहीं है। ये डिसीजन था कि हम लोग
प्रॉफिट नहीं देंगे लेकिन कॉस्ट प्राइस देके ये घर लेंगे। यानी कि ये सब जो घर है उन्होंने म्हाडा ने बहुत उसमें सा चर्चा भी हुई, म्हाडा की कितनी कीमत, इतनी क्यों, इतनी वगैरह वगैरह, और थोड़ा सा उसमें कुछ सब्सिडी है गवर्नमेंट का, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस म्हाडा को सब वर्कर्स दे रहे हैं। उसका एक उसमें से एक फ्रीडम भी मिला है कि अभी कोई बोल नहीं सकता है कि ये आपको ये बेचना नहीं चाहिए, आप 10 बरस बेच नहीं सकते वगैरह वगैरह, क्योंकि ये अभी एसेट के हिसाब से ही हम सब लोग देख रहे हैं। किसको अगर बेचना है, कहाँ जाना है, वो भी उसको फ्रीडम मिलना चाहिए। एक सवाल चैट बॉक्स में फिर से आया है। अभी 5 मिनट है। अगर गायत्री जी बोले तो मैं उस सवाल को ले सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। ओके, सो वैष्णवी का सवाल है, आई वुड रियली लव टू हियर व्हाट रोल ऑफ मुंबई, what role Mumbai's polycentric governance model plays in the process of making policies for housing. I'm not sure what is meant by polycentric governance model. If the questioner can clarify that. Hi, my name is Vaishnavi. What I basically meant is, so a polycentric model is usually considered a democratic way of creating policies for urban planning. And in Mumbai we have that, like we have MMRDA which is the state level planning body. We have BMC or MCGM planning for all of Mumbai in terms of just beyond planning. So what role does it play? Is it a hindrance or is it a way of No, promoting more voices? I think it is incorrect to conceive of it as polycentric governance. Actually, it is what the planner Shirish Patel calls a balkanization of governance, not polycentric governance. Balkanization basically means that many of these decisions which ought to be taken at a local level are taken at the state level through parastatal agencies. Now, the problem with that obviously is that parastatal agencies are less accountable or unaccountable because they're bureaucracies essentially, and there are a whole range of problems as a result of that. For example, Bombay's planning actually, many of these cities' land parcels are planned by other authorities and not planned by the MCGM. So even though MCGM is a planning authority, it has to, those areas are planned by other BKC is one, Milllands, Portlands is another, and so on. So that is a problem. Secondly, when SRA, for instance, wants to do a housing project, or MHADA wants to do a housing project, there is very little coordination with the BMC. The BMC has to provide services, but and often these redevelopments lead to the demand of services which the local authority cannot provide. So if the planning was done through the local authority, through the planning authority, which ought to be further decentralized at the state, ward, and electoral ward level, the planning would work in a more a participatory manner. But right now it works not at the local authority level but at the state government level, and the state government, a lot of the deregulations that are causing the poor quality housing that Neera was showing is in fact a problem of this kind of intervention of the state government in local planning affairs. So it's not polycentric governance definitely, and what is happening actually is very counterproductive. All right, thank you. हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, पर हमने शायद वैसे ही 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था। एक सवाल और आया है, अगर गायत्री जी परमिट करें, और फिर लगता है इस सवाल के बाद हमें समराइज कर देना चाहिए। गायत्री जी बोलिए। ओके, सवाल आया है। हाँ, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, पर वो होमलेस को लेकर है और मुझे लगता है शायद उस पर ज्यादा बात नहीं है, और श्वेता अगर थोड़ा उस पर शेयर करेंगी कम टाइम में तो अच्छा रहेगा। इसमें सवाल है बस्तु रेगी जी का, some information on real homeless and what does the government offer to them. तो brief state of homeless persons and their and related policies and judgment, इसके बारे में अगर आप श्वेता बताएंगी तो ठीक है।
तो बेसिकली NULM के अंदर होमलेस शेल्टर्स का प्रोविजन है और सिर्फ उसी तरह से होमलेस के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। कोविड के वक्त कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे। अभी की परिस्थिति ऐसी है कि नंबर ऑफ होमलेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है रेंट देने के लिए और जो भी रिसोर्सेज उनके पास थे वो एग्जॉस्ट हो गए हैं और वो एग्जॉस्ट होने के चलते हैं वो अब आइदर वो ऐसे स्लम्स में जाके रह रहे हैं विच आर न्यू फॉर्म स्लम्स जहाँ पे शायद रेंट कम हो, डिपॉजिट कम हो, या फिर वो रास्ते पे रहना शुरू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ होमलेस बढ़ गए हैं और अभी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है सिवाय ये बोलने के कि अभी हम होमलेस लोगों को भी वैक्सीनेशन देंगे। उनके पास हमेशा से एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिफिकेशन को लेकर के बहुत उनके पास प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए वो प्रोएक्टिवली कुछ सर्विसेज मांग भी नहीं सकते हैं सरकार से और ज्यादातर एक्सेस टू शेल्टर्स है उसका जरिया पुलिस है जो मोर और लेस उनको डिस्करेज करती है कि वो एक्सेस करे ये सर्विसेज में। और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ शेल्टर्स जो है वो बहुत बहुत कम है और वहां पे जो सर्विसेज होनी चाहिए थी, जो NULM 10-12 सर्विसेज की लिस्ट बताता है, वो भी काफी इनएडिक्वेट सी है। तो ये है होमलेसनेस का सिचुएशन अभी। बेसिकली होमलेस लोगों के लिए जितने शेल्टर महाराष्ट्र में बनाने चाहिए थे, खास तौर से और बॉम्बे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बॉम्बे में होमलेस लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी होमलेस शेल्टर है वो NULM के गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर मैं बिल्कुल और सरल भाषा में बोलूँ तो उसका मतलब ये है कि एक होमलेस शेल्टर में 100 लोगों के लिए जगह होना चाहिए। और असलियत ऐसी है कि किसी भी, हमने बहुत सारे होमलेस शेल्टर जो विजिट किए कमीशन के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए, उसमें किसी शेल्टर में जिसमें 2 लोग रह सकते हैं उसमें 10 लोगों को ठूस ठूस के भरा है। और डिसेबल्ड लोगों के लिए जो शेल्टर में फैसिलिटीज होना चाहिए वो नहीं है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरा स्टेट है होमलेस लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कराने का। और कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई प्रेस्क्राइब प्रोसीजर नहीं है होमलेस लोगों को शेल्टर दिलाने के लिए। वो ज्यादातर काम NGOs के थ्रू हो रहा है। और कोई अगर वाकई में कोई व्यक्ति होमलेस हो जाता है, बनता है, तो उसको उसके लिए कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा कोई चैनल नहीं जिसके थ्रू वो अपने लिए शेल्टर मांग सके। और जैसे श्वेता ने बताया कि पुलिस ही सबसे पहला किसी के माइंड में आता है। तो अगर पुलिस के पास कोई जाता है शेल्टर, किसी बेघर व्यक्ति को शेल्टर दिलाने के लिए, तो सबसे पहले पुलिस डिस्करेज करती है कि या तो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली जाएगा उनसे शेल्टर मांगने के लिए तो उनको क्रिमिनल करके अंदर कर सकते हैं। और कोई सोशल वर्कर अगर उनको मदद करने जाएगा तो सोशल वर्कर को पुलिस बोलती है कि आपको इनके साथ नहीं, इनके इशू में नहीं पड़ना चाहिए, और बहुत सारे टाइप का डिस्करेज करती है। तो बहुत बुरी हालत है होमलेस लोगों की जहाँ तक बात करते हैं। और मुझे अपना बस हाउस जो मैंने गायत्री जी, अगर आप परमिशन देती हैं तो मुझे बस 1 मिनट का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना था हाउसिंग राइट लॉ के बारे में जो मैंने बात छेड़ी। मुझे लगता है कि हाउसिंग मतलब इस कानून की जब हम बात करें तो हमें क्योंकि हम कानून की मांग कर रहे हैं और हमारे कुछ फियर है, तो उसकी वजह से हम कानून की बात नहीं करें। मुझे लगता है ये अप्रोच को थोड़ा सोचना चाहिए। और हाउसिंग राइट लॉ का मतलब जैसे शायद ब्राजील में हो रहा है कि वो हुसैन ने बोला कि अफोर्डेबल हाउसिंग को ज्यादा, मतलब जिस फॉर्मेट में, जिस मॉडल में अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रमोट किया जा रहा है, शायद उस कानून के तहत उसको प्रमोट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कानून होएगा तो काफी एम्पावरमेंट होएगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं होती है, एक्सेस नहीं है जस्टिस पाने के लिए। उनके लिए एक जैसे तिनके को डूबते को तिनके के सहारा, वैसा उनके लिए वो एक टूल हो सकता है।
पर उसको कैसे ट्रांसलेट करें जमीन पर, लोगों को कैसे, लोगों तक कैसे लेके जाएं। बहुत सारे जो हाउसिंग को लेकर मिसकंसेप्शंस हैं, स्लम्स को लेकर मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करके हम उस कानून की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उसको पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, इतना बस मुझे कहना था। गायत्री जी। गायत्री, आप प्लीज सम अप करेंगे या फिर आप अपने कुछ कमेंट्स देंगे? Okay, I will just quickly sum up, because I think a lot of people have said many important things which I don't want to go over because it will lose its impact. But मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो चलेगा बिला तो मैं जल्दी खत्म कर सकती हूँ. One is that the issue that is most important, which was raised both by Amita as well as Bilal, is the issue of legislation. अमिता ने बोला कि नेशनल लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, इट इज अ डेंजरस वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, whereas Bilal has said that there should be a legislation. Today the situation is that there is no national legislation, but each state has its own legislation which brings forth the various varieties of rights to housing. And I think that we need to so right now the situation is that today it is basically judge made law. Judiciary ने जो भी laws pass किए, जो judgments pass किए, उसके आधार के ऊपर जो rights हैं वो judiciary के through से आए हैं और उसको हम consolidate करना चाहिए. Therefore the issue that we are talking in this webinar was right to housing. I would say that listening to everyone and the suggestions that have been made, that we should extend it to right to adequate housing. That is to say that it's not just simple housing, a roof over your head or some shelter over your head, but it is a bundle of rights which basically consist of a decent standard of living with opportunity to grow both emotionally, intellectually, physically, and that includes the right to secure tenure over your land rights. Two is in terms of amenities that should be available, that is good drinking water, electricity, education, nearby schools, health centers, transportation, cheap transportation, and the right to employment which is basically accessible and close to the place where you reside. So these are basic needs that needs to be included when we talk of right to adequate housing. The second question is that it is not some private body. Everybody's spoken about private partnership, etc., etc. It is basically the responsibility of the state to provide these facilities, and it is from the state that we should press for and ask for these facilities to be included. So if we look at the different states and the laws that have been passed by the state, the problem as far as Maharashtra is concerned, as everybody has spoken about, is the issue of cutoff date. For example, in Maharashtra, you have a cutoff date. So you cannot, your eligibility is determined on the basis of when you came to Maharashtra. So it is basically the past that is taken into consideration, not your present and not your future. So as migrants, when we are coming into the city, it may be the present that we need protection from, which is not, and today the law as it stands basically protects people who are living maybe 10 years back, but not the recent people who have come. The second issue with regard to migrant issue, which is not covered in any planning measures that governments have introduced, is the issue of in situ rehabilitation. So people who are being thrown out or evicted are basically thrown away, as many people have said, I don't want to repeat it, are thrown away far away from where they originally resided. There is no circular, no government planning with regard to in situ rehabilitation. We have individual or scattered circulars issued by the BMC saying that you must be accommodated within the ward, but there is no specific right for in situ rehabilitation, which to some extent was dealt with in the recent judgments of Ajay Makkan and what's his name, that other Sudama Singh. In both these judgments, the issue of in situ rehabilitation was brought to the fore.
The last issue, and I don't want to delve into basically what Amita has said, that the issue of livelihood. For example, when we talk about judicial law, it is basically based on the Constitution and our fundamental rights. So it's basically Article 21 that has been expanded. So the right to life has been expanded to mean right to livelihood, which includes right to shelter, right to clothing, right to food. These are basic fundamental rights that are already enshrined in the Constitution and that have been upheld by a number of judgments of the Supreme Court. And I think we should expand on those rights which have already been dealt with in different circumstances. The last issue, and that also basically deals with the issue of planning, which Neera dealt with, Hussain has dealt with, that the planning, for example, participation of people who are going to be affected is one of the most crucial elements in rehabilitating people who are to be evicted. So unless people have a right to decide where they are going to be rehabilitated, what sort of rehabilitation should be there, what sort of planning, as far as planning is concerned, it is the residents or the local people who are going to be affected who should have a say in how the planning is to be done. So planning is a very crucial part of deciding how people are to be rehabilitated. And lastly, the issue is of forced evictions. I think in a number of judgments, the recent one, of course, is Makkan, Ajay Makkan's case, is the issue of forced eviction. We do not say that it is illegal eviction. Why do we say that it is it's not illegal eviction? Because if we talk about illegal evictions, it implies that there is no law. That is a fact. But ultimately, there are laws which have been settled by the Supreme Court. So illegal and unfair evictions are terms that we should not use. It is forced evictions that need to be brought into the fore by relying on judgments of course, the Supreme Court as well as our international law, which says that there should be no forced evictions. It is the state's responsibility to rehabilitate people, and therefore, before evicting any, I think we should close the session on these important issues. But there are other issues that have cropped up and which will be followed in subsequent webinars. One of which Hussain was talking about is the issue of land. And I think that there is a separate session that we are planning on Urban Land Ceiling Act and all the laws relating to land, and what are the issues which we can take up in those sessions. The second, there are a number of other issues relating to rental housing, which also will be taken up subsequently in more detail. So I think I would just like to thank everyone, particularly the speakers, who in a very short and brief manner have presented their points in a very, very lucid and crisp manner, and all the participants who participated in the session, and let's hope that the next sessions will be constructive so that we are able to go forward. It's not just discussing, but how do we concretize it in terms of practical implementation. Thank you. All right, thank you. Thank you, everyone. Thank you. अरे लहसुन अरे